Hello everyone, class. Today we will solve some problem on the basis of exercise 1.3. Here I have NCERT book, and we will discuss problem first to 9. Class 1.3 exercise. It's a first questions is saying that write the followings in the decimal form and say that kinds of a decimal express each. आपको एक ये सारे फ्रैक्शन में दिया हुआ है क्लास 36 upon 100 second is 1 upon 11 and third one is 4 whole number 1 upon 8. These are given so many questions. I will solve 3 of them and you will solve questions. Class, first question is saying that 36 upon 100 is a terminating decimal or non-terminating. Which kinds of decimals are? So terminating decimals, how you can answer first, that will be 36 upon 100. जस्ट जितने नंबर ऑफ जीरो है डिनोमिनेटर में क्लास उतने ही जो होता है काउंट करके हम लोग पुट कर देंगे. दैट विल बी 0.36. आप डिवाइड दे करके भी देख सकते हैं, है ना. आपको यही आएगा. तो 0.36 किस तरह का डेसिमल है? दैट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल है. टर्मिनेटिंग डेसिमल क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसको हम लोगों ने बोला था क्लास? जो डिवाइड देने पे रिमाइंडर 0 आ जाता है. रिमाइंडर 0. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 11 डिवाइड 1. द मीनिंग ऑफ this fraction is this 11 divide 1. डिवाइड लगेगा फर्स्ट टाइम नहीं है. डिनोमिनेटर क्या है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. n इज लेस देन b. तो हम लोग क्या रखेंगे? पॉइंट रखते हैं और एक 0. फिर भी नहीं डिवाइड लग रहा है अगेन, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? एक 0 यहां रखेंगे और फिर 0. Class, this will be now 100. Now divide 9 9 जा 11 9 जा 99. 1 cancel. Again we will put 0, है ना, क्योंकि डेसिमल दे देने के बाद में आपको ये राइट्स मिल जाते हैं कि आप एक 0 बैठा सकते हैं क्लास रिमाइंडर में. जो भी आपके पास रिमाइंडर आ रहा है वो. नाउ अगेन क्लास, व्हाट यू विल डू? दैट इज द 11 एंड 110. 110 हाउ मेनी टाइम्स? 99 टाइम्स. सॉरी, दिस वन इज द 090 and again this one 100. 99 9 times. That will be 100. Again class 100. That is the again 9 times. 99. I think this will be goes tends to infinite. Tends to infinite class. So what kinds of a decimal is this? That is the non-terminating class. It's a non-terminating. और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कितने तरह का होते हैं? 2 तरह का. एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और
दूसरा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट रिपीटिंग। तो ये किस तरह का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्लास। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन 4 1/8 class. First of all, we will change this mixed fraction into a fraction. 4 8 is 32 or 33/8 class. Again we will divide 8 divide 33. How much times? That will be 32. 1 cancel. Again what we have get, that is the remainder is less than divisor. Then what we will put, that's a 0 point, and we will get 1 times, that is the 8 2, and again we will put 0. 8 2s are 16 4, and again 0. 8 5s are 40 plus we will get remainder 0. जैसे ही हम लोग रिमाइंडर 0 मिलता है, किस तरह का डेसिमल है क्लास, टर्मिनेटिंग decimal class. Next question is saying that is the question number 2. You know that 1/7, it is a given that 1/7 given 2 given 1/7 equal to 0.142857 and class it's a recurring on this. ये जो लाइन है इसको हम लोग बार बोलते हैं या रैकरिंग लाइंस भी बोलते हैं क्लास, ध्यान में रखिएगा. एंड दैट विल बी, कहता है कैन यू प्रिडिक्ट विद द डेसिमल एक्सपेंशन, कैन यू प्रिडिक्ट 2/7 3/7 3/7 4/7 क्लास dash up to है, आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिविजन्स. अब कहता है हमें विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीजन, तो बिना लॉन्ग डिवीजन का क्या आप इन सब का वैल्यू निकाल सकते हैं क्लास? ऑफ कोर्स, इट्स अ वेरी सिंपल, दैट विल बी 1/7 2/7 how we can express 2 into 1/7 class. 2 into 1/7 is, that will be the 2 1 4 2 8 5 7 recurring. This one 1/7 का वैल्यू ये दिया हुआ है, that's why we can write 2.28461 and 5 I think. 7 दूना 14 5 दूना 10 1 11 8 दूनी 16 2 दूनी 4 1 5 4 1 5 8 दूना 16 2 दूनी 4 1 5 7 दूना 28. Clear है class? This one, and it will also recurring. Again 3/7, that will be 3 into 1/7 we can write
and 1 upon 7 value is given class. That is why we can write 1 4 2 8 5 7. Again we will multiply. Same by the 3 21 5 दिया 15 2 17 8 3 24 25 6 2 8 42. That will be ये हो जाएगा क्लास. अगेन इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 upon 7, again we will write 1 upon 7 and 4 into 4 1 4 2 8 5 7, same thing, and you will multiply class. That will be the second question. Third question is saying that express the following in form of P upon Q, where P and Q are integers and Q equal to not 0. It is saying that कि P upon Q के फॉर्मेट में हमें लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3. 0 पॉइंट क्लास 6 है, 6 बार. इसको हमको किस फॉर्मेट में लिखना है? P अपॉन Q के फॉर्मेट में, एंड Q इक्वल टू नॉट 0, इस फॉर्मेट में लिखना. क्लास दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. लेट x इक्वल टू 0.6 बार. ये जस्ट पॉइंट के बाद ही रिपीट कर रहा है, पॉइंट के बाद, पॉइंट के पड़ोसी है. तो फर्स्ट इक्वेशन आर इज दिस, एंड second equations. For the second equation, what we will do, just multiply with the 10, 6.6. That will be the second equation, and we can write 10x इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा. 0.6 बार इंटू 10 एंड 0.6 बार. This will be second equation, and from second ऐसा करते हैं, सब्ट्रैक्ट, डायरेक्ट लिखता हूं, सब्ट्रैक्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट क्लास, एंड दिस विल बी 10x minus x equal to, we can write 6.6 बार माइनस 0.6 बार. अब ये क्या होगा? डेसिमल के बाद वाले नंबर है क्लास, ये सारे सब्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, एंड दिस विल बी 9x इक्वल टू 6 केवल बचेगा, एंड x इक्वल टू 6 अपॉन 9. इट इज योर आंसर. ये हमारा आंसर होगा क्लास. इसी तरह से है 0.47 है, इस टाइप का भी मैंने लास्ट वीडियो में करवा रखा है. उसके बाद कहता है एक्सप्रेस 0.999 इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. आप कर लोगे ये सब जो होता है. 4 नंबर भी क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है, रिपीटिंग नंबर है. देखो 3 में यहां पे बार लगाया था, लेकिन क्वेश्चन 4 में क्लास बार नहीं लगाया, बोला ये क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है. दैट विल बी, देखो 0.99999 इन्फिनाइट तक जा रहा है, ऐसे करके छोड़ दिया. तो इसका बार का मतलब और ये इसका मतलब, दोनों का मतलब सेम ही है. ये नंबर रिपीट कर रहा है, इसको भी हमें P अपॉन Q और Q इक्वल टू नॉट 0 के फॉर्म में ही लिखना है. तो फिर अगेन लेट x इक्वल टू 0.999 ऐसे भी लिख सकते हो, या और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग 0.9 टू द पावर बार. कोई भी आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्लास. यू विल डू योरसेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 5.
what can be the maximum number of digit be repeating block of a digits in the decimals expansions 1/17 perform the division। ये आपको डिवीजन करना है 1/17 कहां तक ले हो रहा है, कितनी बार रिपीट कर रहा है क्लास। सीधे हम लोग क्या करेंगे 17 डिवाइड 1 करेंगे और जैसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस में करा था ठीक उसी तरीके से करके हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास। 7 नंबर क्वेश्चंस लुक एट several examples of a rational number in the form of p upon q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal। ऐसे कोई भी डेसिमल आपको लिखना है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो और p अपॉन q के फॉर्मेट में, p अपॉन q के फॉर्मेट में, और HCF जो होगा HCF P एंड Q का वो 1 होना चाहिए, बस इस बात को ध्यान में रखना। और टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये आपको लिखना है क्लास। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग। ऐसा कोई भी टर्मिनेटिंग रैकरिंग आप लिख सकते, कोई भी नंबर एग्जाम्पल केवल लिखना है 7 नंबर क्वेश्चंस में कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपको पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया था उस लास्ट वीडियो में। यू कैन जस्ट चेक केयरफुली। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 8 क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 and 5/7 and 9/11। We want to find the irrational number। हाँ irrational number। अब आपसे ये कर दे रेशनल नंबर निकालना है, इसके तो 4-5 मेथड है क्लास। अब irrational नंबर का है कि फाइंड, क्वेश्चन इज दैट फाइंड, क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड irrational number between 5/7 and 9/11 क्लास। देखो आपको जितने भी नंबर है कहता है फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर, कितने भी, इसमें ये एक्सप्रेस नहीं करा है कि कितने निकालना है आपको, तो सीधे वाली बात इरेशनल नंबर चाहिए, बिटवीन चाहिए क्लास। तो 5/7 पहले इसको हम लोग डेसिमल फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, 1 या 2 डिजिट जितने लिखने होंगे उतने, 1 या 2 डिजिट तक जितने मन करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिवाइड, देखो नहीं हो रहा है 0 8 49 7 टाइम्स लगेगा, 1 पॉइंट इधर, और 9/11 है क्लास, 9/11। इसको हम लोग डेसिमल में जैसे ही करेंगे 11 डिवाइड 9 कितने टाइम्स लगेगा, पॉइंट लगेगा ही, है ना 90। अभी भी नहीं लग रहा है तो 0 टाइम्स डिवाइड लगाएंगे, दैट विल बी 90, और फिर एक 0, सॉरी 0 टाइम्स क्यों लगेगा, ये तो हो गया ना। कितने टाइम्स लगेगा क्लास, 8 8 जा 8 जा, दिस वन इज 1, 8 2 10, और ये कैंसिल हो गया। अब ऐसे ही 0.8 ज्यादा हमें नहीं लेना। मैंने बोला था कि इरेशनल नंबर हम लोग किसको कहते हैं, जो रिपीट करता जाए, है ना, बट कहीं भी स्टॉप नहीं हो क्लास। अब हमें मिल गया जितने रेशनल नंबर पे हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 7 से बड़ा और 8 से छोटा। तो देख लीजिएगा हमारा जो होता है दोनों के बिटवीन होना चाहिए 0.8 का। जितने इरेशनल नंबर का है, देखो 0.7 को ले लेंगे, 1 1 1 1 2 1 3 5 2 3 6 3 9, जो आपको इच्छा करे वो लिखते चले जाइए।
है ना। ये 7 से ग्रेटर होना चाहिए और 8 से लेस देन होना चाहिए, बाकी नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। क्लास नेक्स्ट 7 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3 0 1 1 1 5 डैश डैश, जो आपकी इच्छा है। रिपीट नहीं करना है, पीरियोडिकली रिपीट नंबर नहीं करना चाहिए, बाकी आप जो लिखना चाहते हैं लिखो, है ना, डजंट मैटर, है ना। कि क्या है, ये नंबर है, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, एक एक ऐसे एक एक बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। यहां पर भी एक 0 बैठा दीजिए, है ना। 3 ले लेते हैं, कुछ भी है, नॉन रिपीटिंग नहीं करना चाहिए बार बार कोई भी चीज। जैसे कि देखो, एक पीरियोडिकली रिपीट नहीं करना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा जो आप बैठा दो। तो 7 8 3 1 2 5 3 2 9 0 0, जो आपके मन में आए, 1 0 0 1 1 1 0, जो आपकी इच्छा हो आप लिख दो, है ना, कोई भी चीज, है ना। पीरियोडिकली एक बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, बाकी इस तरीके से आप कितने लिख सकते हो आपको पता हो, दैट इज है ना। दिस इज द इरेशनल नंबर। एंड कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल। ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है ना। तो पहले देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्लास, दैट विल बी द रूट 23। रूट अंडर परफेक्ट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर है। क्लासिफाई, उसके बाद में देखिए 2 2 5 है क्लास, दैट विल, ये किसका है, 15 का है, 15 का है, तो ये क्या है, रेशनल है, ये रेशनल नंबर है क्लास। एंड 0.3796 0.3796, ये भी क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये रेशनल हो जाएगा, है ना, ये रेशनल हो जाएगा। बाकी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो 4 7 4 7 8, ये जो होता है बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग है, 4 7 8 4 7 8, नहीं रिपीटिंग नहीं है, ठीक है क्लास। अब देखिए हम लोग जो होता है नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे कि रिप्रेजेंटिंग द रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। क्लास आप बिल्कुल ध्यान से इस चैप्टर को सुनते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, इस पे आपको प्रोजेक्ट वर्क भी बनाना है, इसलिए आई हैव रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज डू इट केयरफुली एंड रीड इट केयरफुली। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।